Okay, so in today's session, we will be seeing a design problem, or maybe two or three problems on share that we discussed in the last class. So without further ado, I would like to present my screen to you all. I hope my screen is visible to you. Can you see this numerical problem here? Yes, sir. Okay, so let us start. Okay, so this is basically these problems that we are going to solve today is on the last lecture that we have done on share. Fine. So here you can see in this question there is one section of a beam, right? And in the bottom one there are 21 reinforcement of 25 mm dia, right? And in the compression zone there are 4 bars of 25 mm dia and 1 bar of 20 mm dia, right? So these kind of problem can also be there. So आपको basically you have been given this area of steel, right, in the compression as well as in the tension zone. Okay. Now you can see here the width of this section is 500. The overall section is 1400. Sorry, this is effective depth, and this is it is not very clear, but I assume it is 100, I guess. Yes, it is 100. So overall depth is 1500, right? So the question is, the data that is given is width is known to you. Overall depth is 1500 meter. Effective depth, you can subtract 100 from this. So this is your effective depth. It is already given to you. Or otherwise, you'll have to find it, right? But in this case, you have been given this thing. And area of steel in tension is 10308 mm square. And this you can find using this given data also. Like 21 is the number of bars into pi by 4 into d square. D is diameter 25 square. So you'll get this number only. So this is AST, that means area of steel in tension, right? And another one is area of steel in compression. So you can also find out this one. You will have to just add these two areas. Okay, so you'll get this. Next thing is, given that span is of 18 meters, so it is a 18-meter long beam, and the service load, that is a UDL, is given as 52.92 kilonewton per meter. Okay, this is your loading. So the question is that you'll have to design a shear reinforcement at support if tau c, you know that क्या था हम लोगों का tau c? It was the shear stress of the concrete. ठीक है, और मैंने बताया था आपको टेबल गिवन होगी in your code, but in this question they have already provided you with the table. ठीक है, तो आपको यहाँ पर percentage given है और उसके corresponding tau c की value given है. So you don't have to look in the code, right? So it is already given to you in the question. ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं. आपको बेसिकली करना क्या है, ध्यान में रखना, आपको शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन करनी है. ठीक है, तो जैसे हम लोग बेसिकली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आप लोग देखिए. लाइव लोड ऑलरेडी इज गिवन 52.9. देखिए यूडीएल गिवन था. डेड लोड यू कैन फाइंड बिकॉज डेड लोड इज नॉट गिवन. डेड लोड कैसे निकालते थे, सेल्फ वेट कैसे निकाला जाता था. दिस वाज योर विड्थ 500 जो थी, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया. दिस इज योर ओवरऑल डेप्थ इनटू 25 इज योर यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट. ठीक है, तो इसको करेंगे तो आप 18.75 आ रहा है. नाउ टोटल विल बी 52 प्लस 18, so this will give you 71 kilonewton meter. So this is your total load, right? And we are solving using LSM method. अभी इसमें लिखा तो नहीं था, बट हमने इसको LSM से किया हुआ है. So we are solving using LSM method. तो LSM में क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर्ड लोड लेते थे, याद है आपको? तो फैक्टर्ड लोड में हम लोग कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, पार्शियल फैक्टर से, that is 1.5. So 1.5 into load will give you 107.50 kilonewton per meter. You all can also, meanwhile, you can just write on your paper, and here already the calculations are here, but it will help you if you'll do it yourself also, right? So
आपको फैक्टर्ड लोड मिल गया 107.50। अब ये आपका लोड है जो कि पूरी बीम में लग रहा है, ठीक है। अब बट हम लोग किससे रिलेशन, अभी हम लोग को निकालना किससे, द प्रॉब्लम इज टू डिजाइन द शेयर रेनफोर्समेंट। तो शेयर रेनफोर्समेंट निकालने के लिए ऑफकोर्स हमें पहले शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड द शेयर स्ट्रेस। तो शेयर फोर्स कैसे निकलते हैं, तो शेयर फोर्स एट द दिस वन। तो यू ऑलरेडी नो दिस शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। कुछ इसमें बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट I think you can understand. So this is like your shear force diagram. यहाँ पे maximum होता है WL/2, right? And here also it is maximum at the end, that is WL/2. तो shear force at the end at the आएगा WL/2. So W was your load already given. L is your span. Span is 18, ठीक है, by 2, this will give you 967.5 किलोमीटर। तो ये जो सपोर्ट पे आपका शेयर फोर्स आया वो कितना आया, 967.5, राइट। अब आप निकालोगे V is given as shear force upon BD, B upon BD हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं परफॉर्म। So V, you know this 967.5 kilonewton and effective depth. This is small d is effective depth, जो कि 1400 will be in Newton per mm square only. Fine. So next thing is to find the stress develop हो रहा है इस shear force को, जैसे कितना shear stress आ रहा है में 1.382। बट आपको ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको C निकालने के लिए क्या था, C to find this tau C, you'll have to find the percentage of उसके corresponding आप tau C की वैल्यू निकाल सकते हैं, right? So here you can see percentage of steel is given as area of steel upon this dimension B into D into 100। तो इससे परसेंटेज आ जाएगा। एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन हम लोग लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम लोग इस शेयर स्ट्रेस कहां पर निकाल रहे हैं, एट द टेंशन साइड। तो टेंशन साइड पे 10308 है एरिया ऑफ स्टील, ऊपर आपने देखा था B into D सेम into 100, दिस इज गिविंग मी 1.47%, ठीक है। अब आप इस टेबल पे आइए, तो 1.47 कहां पर आएगा, 1.25 और 1.5 के बीच में आएगा, ठीक है। तो आप क्या इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाल सकते हो, 0.70 और 0.74 के कहीं पे अराउंड आना चाहिए, इसके बीच की कहीं वैल्यू आनी चाहिए, है ना। तो कौन सी टेक्निक का आप यूज कर सकते हो, किस तरीके से निकाला जा सकता है, एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर। नो, नॉट गेटिंग इट, ठीक है। आपको वैसे पहले किया हुआ है इसको, बट आप देख लीजिए फिर से। सो यू कैन डू इट विद द यूज ऑफ इंटरपोलेशन, ठीक है। तो आप इंटरपोलेशन से इसको करके देखिए। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है ना, बिकॉज आई कैन नॉट सी इफ आई एम कनेक्टेड और नॉट। यस सर। ओके ग्रेट, थैंक यू। सो इंटरपोलेशन से करके देखते हैं। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, आप लोग जानते भी होंगे, है ना। तो 0.70 और 0.74 के बीच का इंटरपोलेट करना था हम लोगों को, किस वैल्यू के लिए, इसके लिए 1.47% के लिए। तो ये सिंपल है, 1.47 के लिए आप कैसे निकालेंगे, 0.70 प्लस ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, और इससे आपकी वैल्यू आ गई 0.735 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दिस इज योर टाउ सी। अब आप देख लो आपका शेयर स्ट्रेस कितना था, 1.38 मतलब 1.4 के अराउंड है शेयर स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है, और आपका कंक्रीट कितना झेल सकता है, 0.7। तो आपको क्या शेयर इन्फोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कोई आंसर कर सकता है इसको। डू यू नीड अ शेयर इन्फोर्समेंट, डू यू नीड शेयर इन्फोर्समेंट और नॉट, डू यू नीड टू डिजाइन अ शेयर इन्फोर्समेंट फॉर दिस सेक्शन। कल मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, कि जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो 1.3 है, और जो कंक्रीट झेल सकता है वो 0.7 है। तो क्या मुझे शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऑफकोर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि कंक्रीट जितना झेल सकता है उससे ज्यादा शेयर स्ट्रेस मेरे डेवलप हो रहा है ना, 1.38 डेवलप हो रहा है और झेल सकता है ये 0.7। सो कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है वो आप निकाल लोगे यहाँ से। सो वी सी इज योर
शेयर फोर्स इन डेवलप इन द कंक्रीट, जो कंक्रीट जितना शेयर फोर्स झेल सकता है वो है। तो अगेन फोर्स आप कैसे निकाल सकते हो, स्ट्रेस इनटू एरिया, सो स्ट्रेस इनटू एरिया करके आप निकाल लो। दिस इज योर स्ट्रेस 0.375 500 इनटू बी इनटू डी, सो दिस गिव यू 514,500 न्यूटन। को किलो न्यूटन में करेंगे तो 514 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इन किलो न्यूटन, ठीक है। और आपका जो ऑलरेडी डेवलप हो रहा था वो कितना था, 967। तो 967 आपका डेवलप हो रहा था और कंक्रीट आपका ले सकता है 514, तो बचेगा कितना, तो माइनस कर लो। तो शेयर फोर्स रेनफोर्समेंट जो रिक्वायर्ड होगी वो कितने से कितने शेयर फोर्स के लिए रिक्वायर्ड होगी, इट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस किलो न्यूटन ऑफ दिस किलो न्यूटन ऑफ शेयर फोर्स, ठीक है। तो V माइनस VC आप कर लोगे, तो दिस इज 967.5 माइनस दिस वन, तो इतना बच गया 453 किलो न्यूटन के लिए आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, सो वी आर प्रोवाइडिंग अ 2-legged 8 mm डाया स्टिरअप। तो आप ये डिजाइन आप कर रहे हो तो आपके ऊपर है कि आप कितने डाया का इसमें रेनफोर्समेंट ले रहे हो, ठीक है। तो 8 mm डाया का आप रेनफोर्समेंट ले रहे हो इसको कवर करने के लिए। तो 2-legged कैसे मैंने बताया था कल, ये एक लेग है इसका, ये वाला, और ये एक लेग है, तो इसको 2-legged बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू मतलब 2-legged इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। आप डेप्थ 10 के हिसाब से भी ले सकते हो, ठीक है, 10 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको अल्टीमेटली आपका वो सेक्शन पास होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज योर एरिया ऑफ स्टील इन शेयर। तो कितना शेयर लग रहा है एरिया पे, 100.53 mm स्क्वायर, right? So this is your area of steel in shell, right? So you can find the spacing also now. This is your area, 100.53 mm square area आ रहा है आपको, आप spacing कैसे find out कर सकते हो, using this formula, ये पहले भी आप ऊपर देख चुके हो, ठीक है। This was your ASV into 0.87 FY into D upon VS. 0.87 FY, why we are taking this 0.87 FY? Because हम LSM से कर रहे हैं, वरना हम लोग क्या लेते थे, सिग्मा SV लेते थे, ठीक है। तो 0.87 FY हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं। आप ऊपर फॉर्मूला देखेंगे, you'll find it। तो स्पेसिंग निकाल लो, स्पेसिंग कितनी आ गई, ASV आपका 100 था, 0.87 into 415 into this calculation you can do, तो ये आ रहा है 112.17 mm, ठीक है। तो ये स्पेसिंग आ गई। तो प्रोवाइड वी विल बी प्रोवाइडिंग 2-legged 8 mm एट 110 mm सेंटर टू सेंटर। तो अब ये कैसे लिखा जाता है, ये हमने डिसाइड किया था ऊपर 2-legged होगा, 8 mm डाया का हमारा बात था ऑलरेडी, एट द रेट ऑफ, ये 112 था, मैं इसको 110 ही ले रहा हूँ, कोई 2 mm से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 mm बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, ठीक है। mm सेंटर टू सेंटर, ये इसकी स्पेसिंग है, मतलब कि जो मेरी स्टिरअप्स लगेंगी, ठीक है, इस तरीके से उसकी बीच की जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 110 mm की है। तो ये स्पेसिंग मैंने निकाल ली, मतलब मुझे 110 mm की दूरी पे ये रखना पड़ेगा, ठीक है, 110 mm की स्पेसिंग पे ये रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो कि कितनी स्पेसिंग पे आपको स्टिरअप्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब नाउ अब तो ये तो आपने डिसाइड किया था ना कि इतने में हम लोग रखेंगे 8 mm डाया, बट ये पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, ये कैसे हम चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट का जो फॉर्मूला था ये आपको मैंने बताया था ऊपर, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। सो यू नो द स्पेसिंग हमारी कितनी आ रही है, 110 हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, अगर मैं स्पेसिंग को इधर लेके जाऊं तो, और ASV नीचे ले आऊं और B ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। सो आई एम गेटिंग 181, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर आ रही है 181.4 mm, ठीक है। मिनिमम स्पेसिंग कितनी आनी चाहिए थी स्टिरअप्स की, 181 आनी चाहिए थी, और मैं कितना ले रहा हूँ 110, ठीक है। तो मतलब मैं सही हूँ, मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, स्पेसिंग शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 181, और मेरी मैंने ली है 110, तो मैं करेक्ट हूँ, मतलब वो कह रहा है कि 181 से कम होनी चाहिए और मैंने 110 ली है, सो माय डिजाइन इज ओके, ठीक है। तो मेरा ये डिजाइन सही है, मतलब मैंने सही एज्यूम किया हुआ है। तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि शेयर फोर्स देखिए बीच में 0 है बिल्कुल, और एंड्स पे मैक्सिमम है, राइट। सो अगर बीच में 0 है तो व्हाई डू वी नीड टू प्रोवाइड दिस शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है,
है ना, मतलब वहां पर शेयर फोर्स लगी नहीं रहा तो शेयर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, तो क्यों मैं शेयर इन्फोर्समेंट लगाऊं? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था आपको अगर जीरो भी शेयर फोर्स होगा तो भी मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी रेनफोर्समेंट बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर ज्यादा शेयर फोर्स है वहां पर ज्यादा रेनफोर्समेंट लगा देंगे, और जहां पर बीच वाला एरिया है वहां पर कम रेनफोर्समेंट लगा देंगे। ठीक है, अब कम रेनफोर्समेंट कैसे लगा सकते हो, ज्यादा रेनफोर्समेंट कैसे, ज्यादा मतलब कि आप पास पास पे लगा दो काफी सारी किनारे पे। ठीक है, ऐसे करके आपने रेनफोर्समेंट लगा दी, बीच में आप दूरी पे लगा दो, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, उसकी स्पेसिंग बढ़ा, सॉरी इग्नोर दिस वन, आप उसकी स्पेसिंग बढ़ा रहे हो बीच में। ठीक है, ये देखो आपने स्पेसिंग बढ़ा दी। फिर सपोर्ट्स पे आपको ज्यादा शेयर है तो आप पास पास लगा दो, कर सकते हो ना आप। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट रिड्यूसिंग द स्पेसिंग, स्पेसिंग रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ पर बीच में ज्यादा हो जाएगी स्पेसिंग, तो आपकी रेनफोर्समेंट कम लगेगी, जहां पर किनारे पर स्पेसिंग कम होगी वहां पर रेनफोर्समेंट ज्यादा लगेगी, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा यहाँ पर बीच में शेयर फोर्स ही कम है, तो मैं क्यों ज्यादा रेनफोर्समेंट लगाऊं? ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को आप कैसे कर सकते हो, इसको देखिए, आपका ऑलरेडी 967.5 किलो न्यूटन ऑलरेडी आपका वी था जो आपने ऊपर निकाला था, दिस वाज योर शेयर फोर्स, देखो 967, दिस वन 967 था आपका सपोर्ट पे, ये आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स जो डेवलप हो रहा वो था। ठीक है, ये तो सपोर्ट पे है, आपको इसके लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इस तरफ भी वही आएगा, ऑफ कोर्स सपोर्ट है उधर भी। ठीक है, और ये 514 जो है, ये कौन सा था जो कंक्रीट ले सकता था, तो कंक्रीट कितना ले सकता है, 514, देखिए यहाँ पे निकाला होगा, ये देखिए शेयर स्ट्रेस जो कंक्रीट झेल सकता है वो कितना था, 514। ठीक है, तो मैंने पहले बताया आपको, यहां से लेके यहां तक तो कंक्रीट ने झेल लिया, 967 से लेके 514 तो कंक्रीट झेल जाएगा, लेकिन बचा हुआ जो शेयर फोर्स है उसके लिए हम लोगों को शेयर स्ट्रेस शेयर एनफोर्समेंट लगानी है ना। तो बचा हुआ हम कैसे निकाल सकते हैं, वो यहाँ पर से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लेट अस से दिस इज एक्स, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, 514 तक जहां तक कंक्रीट ले ले रहा है वहां तक का हमने ये रेनफोर्समेंट लगाई है जो हमने निकाली है, ये वाली, ये वाली 2 लैख 8 mm एट 110 mm, देखो स्पेसिंग कितनी है 110, बीच में मैं कह रहा हूँ मैं बढ़ा देता हूँ स्पेसिंग, अभी देखना अब मैं इसकी स्पेसिंग बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो उसको बढ़ाऊंगा कैसे मैं, तो मेरा 18 मीटर का स्पैन था, नाउ दिस इज योर 9 मीटर, बीचों बीच इसका 9 मीटर होगा। तो अब मैं इसको सिमिलर ट्राइंगल सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस वाले इन दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करूँ तो मैं क्या मैं लिख सकता हूँ, x अपॉन 9 इक्वल्स टू 514 अपॉन 967, उससे मेरा x फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैंने वही किया है, देखिए x upon 9 equals to 514 upon 967, so x is coming 4.78 मीटर। तो फाइनली x जो मेरा आ रहा है 4.78 मीटर, और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा लूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, सो दिस विल बी 2x, तो 4.78 इंटू 2 कर दोगे आप तो आ जाएगा 9.56 मीटर। सो दिस इज योर स्पेस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का आप ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये आ रहा है 9.56 मीटर, मतलब ये 9.56 मीटर पे आप मिनिमम स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम स्पेसिंग कितनी थी आपने अभी निकाला, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट कितनी प्रोवाइड करनी है आपको स्पेसिंग में, 181 पे, मतलब 180 mm के अराउंड आपको रखनी है। तो आप वही कर लो, बीच में आप क्या करो, प्रोवाइड 2 लैख 8 mm डाया एट 180 mm सेंटर टू सेंटर, इन द सेंटर 9.56 मीटर लेंथ, जो बीच की लेंथ है 9.56 मीटर की, उसमें आपने स्पेसिंग बढ़ा दी, और स्पेसिंग कितनी रखी, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट की कितनी स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी लेस देन 181, तो मैंने उतना ही रख लिया, 180 रख ली, इससे ज्यादा नहीं कर सकता ना मैं स्पेसिंग, तो इतनी मैंने 180 रख ली। तो आप देखो जब मैंने इसका, अब इसकी डिटेलिंग देखिएगा, डिटेलिंग मतलब कि जो रेनफोर्समेंट जैसे लगाई गई है। ठीक है, तो आपकी ये बीम थी, 18 mm का इसका स्पैन था, मैंने बताया बीच के 9.56 मीटर में आपको अपनी ये जो शेयर एनफोर्समेंट है वो रिड्यूस करनी है। वो क्यों रिड्यूस करनी है, क्योंकि बीच में शेयर फोर्स बहुत कम है, शेयर स्ट्रेसेस कम डेवलप हो रहे हैं, लेकिन किनारे पे ज्यादा है, तो मेरी देखिए एनफोर्समेंट सपोर्ट्स पे ज्यादा है कि नहीं, और बीच में मैंने कम कर दिया, और कम कैसे की मैंने, इसकी स्पेसिंग बढ़ा दी। तो देखो मैंने यहाँ पर से यहाँ पर तक का 180 रखी है स्पेसिंग, 180 mm, 180 mm समझते हो ना, 18 सेंटीमीटर करीब मैंने इसकी स्पेसिंग रखी, और यहाँ वालों की मैंने कितनी रखी देखिए, 8 डाया 2 लेग एट 110 सेंटर टू सेंटर, मतलब यहाँ पर वाली की स्पेसिंग है 110 और यहाँ पर है 180। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा रेनफोर्समेंट आ गई, तो मतलब यहाँ का जो ज्यादा शेयर था वो इन्होंने झेल लिया, इस तरफ का भी इसने झेल लिया, बट यहाँ पर शेयर फोर्स कम था, शेयर स्ट्रेसेस कम डेवलप हो रही थी, मैंने कम रेनफोर्समेंट लगाई, तो इस तरीके से मैंने अपनी रेनफोर्समेंट बचा भी ली। तो ये तरीका होता है जैसे आप इसको डिजाइन कर सकते हो।
ठीक है, तो अब आप डिटेलिंग में देखोगे, दिस इज योर मेन रेनफोर्समेंट जो नीचे दिख रही थी आपको, मेन रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल, ये कंप्रेशन साइड वाली है जो ऊपर आपको प्रोवाइड की गई थी। इनको बांधने के लिए ये आपका स्टीरअप्स या फिर शेयर रेनफोर्समेंट्स प्रोवाइड की गई है। और अगर आप इसका ऐसे सेक्शन कट कर लो तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा सेक्शन जो ऊपर क्वेश्चन में दिया था। आपकी ये मेन रेनफोर्समेंट्स हैं जितनी भी लगी होंगी, काफी सारी यहाँ पर लगी है, मान लीजिए नीचे वट एवर, मैं थोड़ा कम दिखा रहा हूँ, थोड़ा और भी हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ऐसे लगी हुई है नीचे, और ये आपकी लगी हुई है ऊपर, ठीक है, कंप्रेशन जोन पे। तो शेयर इन्फोर्समेंट कौन सी है, ये वाली आपको कैसे दिखेंगी, ये वाली है शेयर इन्फोर्समेंट जो इनको कंबाइन करके रखेगी, ठीक है, इस तरीके से ये इसको कंबाइन करके यहाँ से बात के रखेगी। सो दिस इज योर, दिस वन इज योर शेयर इन्फोर्समेंट, ये जो बाहर की तरफ प्रोवाइड किया। तो अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको वर्टिकली दिखेगा ना, और ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं इन्फोर्समेंट वो ये वाली है, ये जो नीचे लगी हुई है और जो ऊपर लगी हुई है, टेंशन जोन में, कंप्रेशन जोन, ठीक है। तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। और मैक्सिमम स्पेसिंग में भी आप चेक कर सकते हो कि ये सेफ है कि नहीं। मैक्सिमम स्पेसिंग का क्या क्राइटेरिया था, फॉर वर्टिकल स्टिरअप इट वाज 0.75 टाइम्स डी, 0.75 टाइम्स 1400 इज 1050 mm, एंड सेकंड वाज योर 300 mm से तो ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। तो हम लोग ऑलरेडी सेफ हैं बिकॉज हमारी देखो स्पेसिंग कितनी है, एक जगह 110 है, एक जगह 180 है, सो वी आर ऑलरेडी सेफ, यू नो। 300 mm को एक्सीड नहीं करना चाहिए बोला, या फिर इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो हम दोनों में सेफ हैं, हम, दैट मीन्स वी आर सेफ, ठीक है। 300 mm को एक्सीड नहीं करना चाहिए, हमारी स्पेसिंग कितनी आ रही है 110 और 180, तो हमारा डिजाइन मतलब सही है, वी आर सेफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग शेयर इन्फोर्समेंट को डिजाइन करोगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को, किसी को कोई डाउट है इस पे? नो सर। ओके, चलिए मैं एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को और शो करता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये बेसिकली बेंट अप बार पे है, जो मैंने लास्ट टॉपिक कल पढ़ाया था, दैट वाज योर बेंट अप बार, ठीक है। बेंट अप बार मतलब कैसे होती थी, ये देखिए डायग्राम बना हुई है जिसमें आप नीचे मेन रेनफोर्समेंट को बेंड कर देते थे, है ना। तो वो मैंने बताया था अंडर रूट 2a डिस्टेंस पे आप करते थे उसको। तो क्वेश्चन क्या पहले देख लेते हैं, देन विल गो टू दिस सॉल्यूशन आल्सो। एक सिंगली रेनफोर्स बीम है जिसका साइज 300 बाई 750 mm है। सॉरी क्लियरिटी बहुत नहीं आई है, फोटो खींचने में थोड़ा नहीं क्लियर हुआ, वटेवर। साइज कितना है इसका, 300 बाई 750 mm, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी डायमेंशन गिवन है बीम की। इफेक्टिव डेप्थ इज सपोर्टेड ओवर एन क्लियर स्पैन ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर का स्पैन है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो कितना है, 6 मीटर है। एंड सब्जेक्टेड टू अ यूडीएल ऑफ 65 किलोन्यूटन पर मीटर। इस पे लोडिंग जो लग रही है वो कितनी लग रही है, 65 किलोन्यूटन पर मीटर, मतलब ये लाइव लोड है बेसिकली, एक्सक्लूडिंग सल्फेट, दैट मींस यू विल हैव टू फाइंड द सल्फेट आल्सो। तो दिस प्लस सल्फेट आप निकालोगे वो टोटल वेट आ जाएगा, ठीक है, टोटल लोड आ जाएगा। और ये बोल रहा है 8 नंबर ऑफ 25 mm डाया, 25 mm मतलब 25 mm की डाया की बार आपकी जो है हैज बीन प्रोवाइडेड इन द टेंशन रिइंफोर्समेंट, मतलब नीचे की तरफ टेंशन साइड पे कितनी प्रोवाइड की गई है, 8 into pi by 4 into 25 square, that will give you the area of this tension reinforcement। वो टेंशन है तो मतलब नीचे की तरफ प्रोवाइड की गई है, ठीक है, टेंशन जोन में। अभी आपसे बोला है डिजाइन शेयर इन्फोर्समेंट यूजिंग बेंट अप बार। अब इसने आपको कंपलसरी बोला है कि आपको बेंट अप बार यूज करनी है, मतलब आपको बेंट भी करनी पड़ेगी बार, ठीक है। ऑल्सो एट सुटेबल लोकेशन, जहां जहां पर उसकी लोकेशन है उस जगह पर आपको प्रोवाइड करनी है। और आपको इसने दिया है कि आपको M20 कंक्रीट यूज करना है और स्टील आपको Fe415 स्टील यूज करना है। एंड वन मोर कंडीशन इज दैट यू हैव टू यूज द WSM मेथड, ठीक है। ये आपको पहले स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि आपको WSM मेथड से करना है। इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि LSM से या WSM से, तो आप क्वेश्चन में खुद से लिख सकते हो कि आई एम सॉल्विंग दिस बाय यूजिंग LSM मेथड और WSM मेथड, व्हाटएवर यू नो बेटर, ठीक है। तो आप उसका यूज कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो स्पेसिफिकली यू विल हैव टू सॉल्व यूजिंग दैट मेथड ओनली, राइट। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अब देखिए 6 मीटर का स्पैन है, आपको लोडिंग गिवन थी ऑलरेडी, आपको बेंट अप बार बनानी है, ठीक है। अब कैसे आप करोगे, तो मैंने आपको बताया था लोकेशन ऑफ बेंट अप बार कैसे होती थी। पहली बार होती थी जो होती है वो सपोर्ट से √2a होती है, √2a, एंड हियर a इज योर लीवर आर्म डिस्टेंस, जो कि कितना होता है j टाइम्स d। तो आपको दो चीज की जरूरत है, j और d की। देखो d तो आपको पता होगा इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी, तो गिवन है 750 mm, राइट। तो इफेक्टिव डेप्थ गिवन है 750 mm,
जे आपको निकालना पड़ेगा। जे कैसे निकालते हो आप WSM में, अब तो काफी आइडिया हो गया होगा आप लोगों को। तो जे का फॉर्मूला होता था 1 - k/3, ठीक है। अब के की जरूरत पड़ेगी आपको, के होता था MC + T + MC, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो यू ऑलरेडी नो दीज फॉर्मूलाज, ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो M इज योर मॉड्यूलर रेशियो फॉर M20 is 13, C 7, T is 230 for Fe415, ठीक है। अगर आपको WSM मेथड याद होगा, अगर आप भूले ना हो, ठीक है, तो आप ये इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो जे आपको फाइंड आउट हो गया 0.905, तो यू कैन सब्स्टिट्यूट जे है। तो आप देखिए कितना हो गया, फर्स्ट लोकेशन ऑफ द बेंट अप बार इज 960.42 mm फ्रॉम सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट है। तो यहाँ से लेके जितनी भी दूरी है 960 mm, मतलब 96 सेंटीमीटर जहां पर भी आ रहा होगा, वो आपकी फर्स्ट लोकेशन होगी बेंट अप बार। और बेंट अप कौन से बार्स को करते हैं, जो मेन रेनफोर्समेंट होती है उसको बेंड कर देते हैं ऊपर को, ठीक है। तो पहली लोकेशन तो हमें पता चल गई। अब दूसरी लोकेशन फाइंड करते हैं, मतलब पहली लोकेशन यहाँ से भी ऑफकोर्स सपोर्ट से यहाँ तक का पहली लोकेशन ये होगी, यहाँ पर पहली लोकेशन ये होगी, सेम होगी, ठीक है। अब लेट अस फाइंड द सेकंड लोकेशन। तो सेकंड लोकेशन क्या होती है, अगेन फर्स्ट लोकेशन से √2a की डिस्टेंस पे। तो सेकंड लोकेशन इज योर √2 टाइम्स ऑफ 2a, मतलब ट्वाइस कर दूं मैं अगर इस डिजिट का 960 का, तो दैट विल गिव मी सेकंड लोकेशन। तो ट्वाइस ऑफ 960 इज 1920। बट मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कभी भी बेंट अप बार स्पैन अपॉन 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्पैन अपॉन 4, स्पैन कितने मीटर का, देखिए 6 मीटर का स्पैन है, मतलब 6000 mm का स्पैन है अपॉन 4, तो दिस इज गिविंग मी 1500 mm। तो 1500 mm से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, मतलब 1.5 मीटर से ज्यादा आपका बेंट अप नहीं होना चाहिए। और ये कितना आ गया 1920, तो ये ज्यादा आ गया। तो आप मतलब सेकंड लोकेशन पे बार नहीं बेंड कर सकते हो, यू कैन नॉट बेंड बार। तो आप एक ही बार को बेंड कर सकते हो, बस पहली वाली बार को, यू कैन नॉट बेंड दिस वन, ठीक है। इसलिए मैंने क्रॉस लगाया कि आप सेकंड बार नहीं बेंड कर सकते, बिकॉज वो एक्सीड कर जा रहा है लेंथ को। तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी सेकंड बार को नहीं बेंड करोगे, तो पहली लोकेशन पे ही बार बेंड हो रही है हम लोगों की, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ से। तो bar cannot be bent from second location, ठीक है। So let us now bend two number of 25 mm from first location। two number मतलब कि इस तरफ से और इस तरफ से हम लोगों ने बार्स को बेंड कर दिया है ऑफ 25 mm। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है 25 mm क्यों लिया हम लोगों ने। बेसिकली ये जो टेंशन रेनफोर्समेंट है वो 25 mm की है ना, वही रेनफोर्समेंट तो हम लोग बेंड कर रहे हैं ऊपर को, ऐसे जा रही थी स्ट्रेट, हमने इसको ऐसे मोड़ के ऐसे मोड़ दिया ऊपर की तरफ। तो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे देखेंगे तो कई टेंशन जो रेनफोर्समेंट होगी उनको ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो 25 mm की थी, इसलिए हमने 25 mm लिया है यहाँ पे। तो हम बता रहे हैं कि 2 बार हम लोगों को बेंड करनी है 25 mm की फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन, ठीक है। लेकिन हम बेंड तो कर रहे हैं, अब उसकी हम लोगों को डिजाइन भी चेक करना पड़ेगा कि वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो शेयर फोर्स आप निकाल लो, शेयर फोर्स का डायग्राम आपको पता है। मैक्सिमम शेयर फोर्स कहां पर होगा, सपोर्ट पे होगा। मिनिमम कहां पर होगा, सेंटर पे होगा, ठीक है। तो ये 6000 mm की इसकी वो है स्पेसिंग है, सॉरी स्पैन है। तो सेंटर से इधर 3000 होगा, सेंटर से इधर भी 3000 होगा, ठीक है। अभी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला काम यही करते हैं, शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ होगा, सपोर्ट पे होगा, वो निकाल लेते हैं। उसको निकालने के लिए हमें WL/2 करना पड़ेगा। आपको पता है मैक्सिमम शेयर फोर्स एट द सपोर्ट इज फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज WL/2। अब इसके लिए बट हमें W की जरूरत पड़ेगी, तो लोड निकाल लेते हैं। लोड 65 किलोन्यूटन मीटर, ऑलरेडी UDL आपको गिवन है। सेल्फ लोड निकाल लो। सेल्फ लोड कैसे निकालते हैं, जो भी डायमेंशन है, कितनी डायमेंशन है 300 × 750 और 50 mm ये इफेक्टिव दे रखा है, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो। तो ओवरऑल डेप्थ कितनी होगी, 50 mm ज्यादा ले लीजिए, इससे बीम में 50 mm का कवर होता है, तो ये हो जाएगा 300 × 800। तो देख लीजिए 300 को मैंने लिख दिया 0.30 मीटर, इंटू 800 को 0.8 इंटू 25 यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, दिस इज गिविंग मी 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 65 + 6 इज 71 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो 75 किलोमीटर पर मीटर का मेरा लोड आ गया। अब एक चीज नोटिस करना, मैं इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ लोड को, क्यों, क्योंकि मैं WSM मेथड से कर रहा हूँ। LSM से करता तो मुझे यहाँ पे लोड में भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर हो गई आपको मेरे ख्याल से अभी तक। तो शेयर फोर्स निकाल लीजिए, मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना आ रहा है एट द सपोर्ट विल बी 213 किलो न्यूटन, मतलब 213 किलो न्यूटन यहाँ पर आ रहा है, मतलब दिस इज योर 213, दिस वन एट द सपोर्ट 213 आएगा, ठीक है। वैसे ही बीच में जाते रहेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 200 आ गया, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर 100, यहाँ पर 150, यहाँ पर 0, है ना। इस तरीके से ये रिड्यूस होता चला जाएगा बीच में आते। तो 213 किलो न्यूटन का जो है शेयर फोर्स लग रहा है सपोर्ट पे, जो कि मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है।
अब ये स्ट्रेस निकाल लेंगे। स्ट्रेस निकालना आपको बहुत इजीली आता है। डिजाइन अ शेयर एनफोर्समेंट विद बेंट अप बार। अब हम लोग को बेंट अप के साथ शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी। तो अब अगर आप ये डायग्राम देखो तो देखो मैंने एक फर्स्ट लोकेशन पे इसको बेंड किया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक, बार्स को बेंड किया हुआ है। और ये जो है ये मेरी शेयर एनफोर्समेंट्स है, ठीक है। तो मुझको दोनों चीजें डिजाइन करनी है, बेंट अप वाला भी डिजाइन करना और शेयर एनफोर्समेंट भी डिजाइन करनी है। तो पहले मैं विद बेंट अप बार कर लेता हूँ। तो देखिए नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कितना होता है, टाउ वी, V अपॉन वी डी। तो V हमारा मैक्सिमम था 213 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज किया। दिस इज गिविंग मी 0.95 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, ये जो मेरा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है जो डेवलप हुआ है वो है, ठीक है। और मुझे निकालना है टाउ सी, मतलब कंक्रीट कितना झेल सकता है वो निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील से। तो परसेंटेज ऑफ स्टील अगेन वही फॉर्मूला है, AST अपॉन BD इंटू 100। So this is giving me 6 times of pi/4 into 25 square। मेरे ख्याल से ये डायमेंशन ये आपको गिवन था, सॉरी, हाँ ओके। देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर 8 नंबर की बार हैं जो कि क्या है, मतलब टेंशन में है, प्रोवाइड की गई है। इसमें से 2 मैंने बेंड कर दिए हैं, तो मेरे पास टेंशन में कितनी बची हैं, 6 बची हैं, ठीक है। तो 2 मैंने बेंड कर दिए, इसलिए मैं यहाँ पर 6 ले रहा हूँ। देखिए ये भी नोट करने वाली बात है। ये देखिए जब मैंने एरिया ऑफ स्टील निकाला तो मैंने 6 के हिसाब से निकाला, क्योंकि 2 मैंने ऑलरेडी बेंड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सो दिस विल गिव यू 1.308%। तो 1.31% के हिसाब से आप देख लीजिए। इंटरपोलेशन आपको करना पड़ेगा, इसमें टेबल नहीं गिवन है, आपको आईएस कोड देखना पड़ेगा। आईएस कोड में देखिएगा 1.31 के कॉरस्पॉन्डिंग M20 में कौन सी वैल्यू गिवन, तो शायद ये आपको इंटरपोलेशन करके निकालना पड़ेगा। तो टाउ सी की वैल्यू आ गई 0.42, टाउ वी आया था 0.95, मतलब इतना डेवलप हो रहा है, 0.9 डेवलप हो रहा है, और कंक्रीट झेल सकता है 0.4। तो मेरे को ऑफकोर्स शेयर एनफोर्समेंट की जरूरत है, साफ पता चल रहा है ना। तो कितना शेयर एनफोर्समेंट मुझे चाहिए वो मैं कैसे निकालूंगा, तो कंक्रीट का पहले मैं शेयर फोर्स निकाल लेता हूँ। इट इज VC, तो कितना होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया इज योर फोर्स। तो स्ट्रेस आपको पता है 0.427 आ गया, अभी निकाला हमने ऊपर ये। B और D आपको पता है, तो दिस इज गिविंग 96.12 किलोमीटर। अब देखिएगा यहाँ पे ये देखिए डायग्राम, इस वाले में देखिए जी 213 तो मैक्सिमम था, और कंक्रीट कितना झेल रहा है 961, तो यहाँ तक तो कंक्रीट झेल रहा है। तो बचा हुआ बीच का जो पोर्शन होगा यहाँ तक मान लीजिए कंक्रीट झेल रहा है 961 जो भी है, ये वाला एरिया है जिसमें मुझे कम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है बीच में, ठीक है। यहाँ पर मुझे मैक्सिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है इस एरिया में। शेयर रेनफोर्समेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप डायग्राम देखेंगे भी बाद में। तो ये देखिए यहाँ पर ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है, तो बीच में कम की गई है, स्पेसिंग ज्यादा है। तो वही चीज करनी है जो पिछले क्वेश्चन में की थी। अब आपको VC पता चल गया। अब आपका शेयर फोर्स कितने के लिए डिजाइन करेंगे आप, VS माइनस VC, ठीक है। VS इक्वल टू V माइनस VC। सो V इज योर 213 आपका टोटल था, 96 आपका कंक्रीट ने ले लिया, तो दिस इज योर 116.8 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आ गया आपको 116.8 किलो न्यूटन के लिए आप जो है शेयर रेनफोर्समेंट डिजाइन करोगे, ठीक है। अब बेंट अप बार के लिए देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेंट अप बार। ये फॉर्मूला कल हमने देखा था बेंट अप वाले में, VSB लिखा हुआ है, दैट मींस इट इज योर बेंट अप बार, ठीक है। तो बेंट अप बार के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू एरिया इनटू स्ट्रेस इनटू साइन अल्फा, इसलिए क्या हुआ है क्योंकि बेंट है, और बेंट में कुछ एंगल पे हम लोग रखते हैं, तो बेसिकली 45 पे रखते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लो, एरिया ऑफ स्टील इन बेंट, तो कितना होगा एरिया, कितनी बार बेंट किए मैंने, 2 बार बेंट किए हैं, उनका कितना एरिया होगा उसका 2 इंटू, क्योंकि 2 बार बेंट किए हैं, π/4 इंटू D स्क्वायर। D कितना होगा, डायमीटर कितना लूंगा मैं, 25 ही लूंगा ना, वही टेंशन वाली रेनफोर्समेंट को ही तो बेंड किया मैंने, 2 रेनफोर्समेंट को बेंड कर दिया है, इंटू 25 स्क्वायर। सो दिस विल बी योर एरिया। सिग्मा SB किसके लिए लेंगे हम लोग, स्ट्रेस ऑफ स्टील इन बेंडिंग। तो बेंडिंग में वही वाली रेनफोर्समेंट है जो टेंशन के लिए रेनफोर्समेंट है। तो टेंशन के लिए कौन सी रेनफोर्समेंट थी, Fe415 के लिए सिग्मा SB कितना होगा, परमिसिबल कितना होता था, 230 होता था, WSM में याद करो अगर ध्यान आए तो आपको, ठीक है, इंटू साइन 45 डिग्री इंटू 10⁻³ ये कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर में, ठीक है।
सो दिस इज गिविंग मी VSB बेंट अप बार का जो आ रहा है वो आ रहा है 159.67 किलोमीटर। इतना जो है कौन सी बार ले रही है 159 या 160 बोल लो इसको, 159.6 किलो न्यूटन कौन सी ले रही है, मेरी जो दो बार्स हैं बेंट अप बार, ठीक है, वो ले रही है। और इसके साथ अब मुझे दो तो मैंने ये लगा दी, दो तो हो गई हैं, एक और दो यहाँ पर मैंने ये प्लेस कर दिए, बट इसके साथ मुझे शेयर एनफोर्समेंट तो लगानी है, अब वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा शेयर एनफोर्समेंट। तो वर्टिकल शेयर एनफोर्समेंट नीड टू बी डिजाइन फॉर, किसके लिए डिजाइन करेंगे हम, दो चीज मैंने बताई थी, VS/2 और VS-B। VS क्या था, जो भी हमने निकाला था, जो नेट शेयर बच रहा था हम लोगों को, ठीक है। तो VS वाज 116, आप देख लीजिए ऊपर, ये 116 था। इन दोनों में से विच एवर इज मोर उसको लेते हैं, ठीक है। 116/2 विल गिव यू 58, और VS-VSB, हाँ देखिए अभी यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, VS इज 116 और VSB जो ले रहा है वो 159 है, तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव में आ गया ना, VS-VSB करोगे तो नेगेटिव में आएगा, तो कौन सा ज्यादा होगा, ऑफकोर्स ये वाला ज्यादा होगा, तो यू विल डिजाइन फॉर 58.45, ठीक है। अगर ये भी कुछ वैल्यू आती तो आपको देखना पड़ता दोनों में से कौन सा ज्यादा मैक्सिमम है, तो इस केस में 58.45 किलोमीटर मैक्सिमम है, तो आप इसके लिए डिजाइन करोगे। तो आप डिजाइन कैसे करोगे, नाउ यूज टू लेग्ड 8 mm डाया वर्टिकल स्टिरअप स्पेसिंग। टू लेग क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगेन मैं इस तरीके से इसको बांध रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मेन रेनफोर्समेंट है इस तरीके से। तो टू लेग्ड आप अब तक समझ गए होंगे, टू लेग्ड मतलब ये जो दो लेग्स हैं, एक ये है और एक ये लेग है, इसको बोलते हैं टू लेग्ड। टू लेग्ड 8 mm डाया मतलब ये वाली जो रेनफोर्समेंट है मेरी, इसकी डाया कितनी है, 8 mm की है। वर्टिकल स्टिरअप्स, इसकी स्पेसिंग कैसे निकाल सकते हैं, स्पेसिंग का फॉर्मूला आपको पता था, WSM में क्या होता था, SV equals to ASV into sigma SV into D अपॉन, अब VS/2 क्यों ले रहा हूँ मैं, जब आप बेंट अप बार के लिए करते हैं मैंने बताया था, या तो आप VS/2 के लिए डिजाइन करते हैं या VS-VSB के लिए करते हैं, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसके लिए डिजाइन करें, तो आप डिजाइन करोगे 58.45, तो रख लो यहाँ पर, नीचे आ गया 58.45 into 10⁻³ ASV आपने ऊपर निकाला ही है, सिग्मा SV आपको पता है 230 है, D इफेक्टिव डेप्थ है, तो स्पेसिंग आ गई 296। तो मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग टू लेग्ड 8 mm डाया एट 290 mm सेंटर टू सेंटर। देखो 296 है, मैंने 6 mm कम ले लिया, कोई बात नहीं, 290 mm का मैंने इसकी स्पेसिंग ले ली। तो मैं कितने में प्लेस कर रहा हूँ इसको, वर्टिकल स्टिरअप्स को मैं कितने में प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पर वाली जो वर्टिकल स्टिरअप्स हैं, आई एम प्लेसिंग दीज एट टू लेग्ड 8 mm डाया एट 290 mm सेंटर टू सेंटर, ये 290 के डिस्टेंस पे है, ठीक है, 290 के डिस्टेंस पे। नाउ इसमें अगर आप आगे निकालेंगे शेयर फोर्स बियॉन्ड बेंट अप बार्स, अब शेयर फोर्स जो है बेंट अप बार के बाद पे जो होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो आप सिंपल देखिए, यहाँ तक का आपका बेंट अप था, कहाँ तक का, यहाँ तक का ना, फर्स्ट लोकेशन थी 960 थी, हाँ 960 आपकी फर्स्ट लोकेशन थी, तो यहाँ तक आपका फर्स्ट लोकेशन था। इसके बाद आपको जो शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन करना पड़ेगा, इसके बाद का जो एनफोर्समेंट है वो कैसे डिजाइन करोगे, सिंपल है, फिर से सिमिलर ट्रायंगल से ले लो, 3000 अपॉन दिस वन डिस्टेंस 3000 माइनस 960 दिस अपॉन 3000 इक्वल्स टू दिस वन अपॉन V, तो आपको ये मैक्सिमम ये पता चल जाएगा कितना है शेयर फोर्स, ठीक है। आप देख लीजिए इसमें भी ऐसे ही क्या होगा, सॉरी जस्ट मिनट, यस ठीक है, शेयर फोर्स बियॉन्ड बेंट अप बार, सो V1 अपॉन V इक्वल्स टू 3000 माइनस 960 अपॉन 3000, वही वाले सिमिलर ट्रायंगल से किया तो मेरे को V1 मिल गया, दैट इज योर 144.8 किलो न्यूटन, ठीक है, ये वाला मुझे मिल गया यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था आफ्टर द बेंट अप बार, ये वाला, ठीक है, दिस इज योर V1। तो कैसे निकालेंगे, 3000 माइनस 960 ये डिस्टेंस आ जाएगी अपॉन 3000 इक्वल्स टू V1 अपॉन V, तो V1 आराम से आप निकाल लोगे। तो आपको ये यहाँ पर का शेयर फोर्स पता चल गया, शेयर स्ट्रेस निकाल लो, शेयर फोर्स पता चल गया, शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टाउ V इक्वल्स टू V1 अपॉन BD, तो V1 अपॉन B इंटू D इज गिविंग यू 6.4, इसको दोबारा से चेक कर लो टाउ C से, तो परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी हो गई, 8 into π/4, 8, अब देखिए आप परसेंट ऑफ स्टील में मैंने 8 लिया क्योंकि अब मैं बेंट अप नहीं डिजाइन कर रहा हूँ, बेंट अप तो मेरी 2 थी और जो मेरी बची हुई थी वो कौन सी थी, 6 जो मेरी बच गई है वो मेरी टेंशन रेनफोर्समेंट है, ठीक है, जिसमें मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी मैं जो
स्टील का एरिया ले रहा हूँ 8 ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, टोटल ले रहा हूँ यहाँ पे। और बेंट अप में मैंने सिर्फ 6 के लिए लिया था, 2 को नहीं लिया था कंसिडर, तो यहाँ पे 8 को करेंगे, चीज ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 1.74 आ गया, सेम प्रोसीजर है वही, टाउ सी फॉर 1.75 इज 0.47, इंटरपोलेशन से निकाल लेना आप टेबल से। बीसी विल बी अ टाउ सी इंटू बी डी, तो कंक्रीट का देख लो 105 आ गया। और फिर से देखो यहाँ पे ये था टाउ, this one was your V1 was your, see, this V1 was your 144 था, ठीक है। और आपका जो कंक्रीट झेल सकता है वो कितना झेल सकता है, 105। तो बचा हुआ जो है वो कौन झेलेगा, शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो देख लो 144 माइनस 105 आएगा 39.09 किलोमीटर, तो इतने के लिए आपको शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगेन वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लेग 8 mm डाया की स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्पेसिंग का फॉर्मूला लगा दो, SV इक्वल्स टू AS इंटू, ये WSM मेथड है तो सिग्मा SV ले लेगा, देखिए ठीक है, 230 लेना पड़ेगा। और अगर ये LSM होता तो 0.87 FY लिया होता, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। VS आपको पता है 39.9, सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 443 mm आ गया। तो आपकी स्पेसिंग कितनी है, 443 mm। लेकिन आप मुझे बताइए क्या आप इतनी स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो इतनी कंडीशन में, 443 mm कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था मैक्सिमम स्पेसिंग शुड बी 0.7 टाइम्स D, या फिर 0.74 टाइम्स D, या फिर मैक्सिमम 300 mm तक का ही प्रोवाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, 300 mm तक का। तो क्या मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ 443? नहीं, ये ज्यादा हो रहा है, तो मैं अपने आप को या तो इस पर रिस्ट्रिक्ट करूंगा या फिर इस पर रिस्ट्रिक्ट करूंगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, स्पेसिंग निकाल लेते हैं। मिनिमम स्पेसिंग कितना होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, ASV अपॉन B इंटू SV, 0.4 अपॉन 0.87 FY। तो आप स्पेसिंग निकाल लो। तो मेरी जो मिनिमम स्पेसिंग होनी चाहिए थी वो थी 302 mm, और मेरी आ रही है 443 mm। तो क्या मैं ठीक हूँ? नहीं, मैं इतनी प्रोवाइड कर ही नहीं सकता ना। मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट जो मुझे प्रोवाइड करनी है वो इतनी स्पेसिंग में करनी है, ठीक है। और मैं इससे ज्यादा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आपको ये भी पता है कि मैक्सिमम शेयर स्पेसिंग में कितनी दे सकता हूँ, 300 mm ही दे सकता हूँ। तो 300 mm से तो मैं ज्यादा जा नहीं सकता, तो मैं अपने आप को किसमें रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। सो आई विल प्रोवाइड 2 legged 8 mm डाया एट द रेट ऑफ 300 mm, ठीक है, सेंटर टू सेंटर। तो आप लिख देना इसको 2 legged 8 mm डाया एट 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो अगर आप अब इस डायग्राम को देखें, इसकी डिटेलिंग, तो ये देखिए, ये बेंट अप बार हो गई आपकी, जो आपने डिजाइन की थी। 2 बेंट अप बार्स आपने रखी हुई है यहाँ पे, जो किनारे पे हैं, जो जहाँ पर मैक्सिमम शेयर फोर्स है वहां पर आपने निकाला था 2 legged 8 mm डाया ऑफ 290 mm सेंटर टू सेंटर, ये आपने यहाँ पर डिजाइन किया था। और जो बियॉन्ड बेंट अप बार है उस जगह के लिए आपका आया 8 mm डाया 2 legged 8 mm डाया एट द रेट 300 सेंटर टू सेंटर। जबकि मेरा 440 कुछ आ रहा था, बट मैं उतनी नहीं प्रोवाइड कर सकता, मैक्सिमम मैं 300 ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लूंगा 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये आपकी सेंटर में रेनफोर्समेंट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी। अगर बेंट अप बार का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से करेंगे, नहीं आएगा तो आप सिंपल वर्टिकल स्टिरप्स को आप लोग डिजाइन करके बता सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर बेंट अप आएगा तो फर्स्ट आपको लोकेशन निकालनी पड़ेगी बेंट अप बार की, ठीक है। एक बार इसको रिव्यू कीजिएगा क्वेश्चन को, 1-2 क्वेश्चन और करने की कोशिश करना, क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टेप सारे रिपीट हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, स्टेप फॉर्मूला वही है, स्टेप सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, बट यू जस्ट हैव टू कंसिडर कि कौन सा स्टेप पहले है और क्या चीज हम लोगों को निकालनी है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें ये ध्यान में रखनी, ठीक है। एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल बी टेकिंग। तो ये मैं आपको एज अ असाइनमेंट दे रहा हूँ अभी, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट नोट डाउन दीज डिटेल्स। एक रेक्टेंगुलर आरसी बीम है, उसको M15 है और Fe415 है, ठीक है। स्टील Fe415 है, साइज गिवन है इसको 250 into 500 mm इफेक्टिव दिया हुआ है, मतलब कि ये 500 mm इफेक्टिव साइज दिया हुआ है, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ गिवन है। शेयर फोर्स इसमें 60 किलोन्यूटन गिवन है, ऑलरेडी बता रखा है। स्टील है, 3 नंबर है, 16 mm डाया की बार है, तो आप एरिया ऑफ स्टील निकाल देना, ये स्टील निकल जाएगा। अंडर सर्विस लोड कंडीशन कैलकुलेट स्पेसिंग ऑफ 8 mm डाया 2 legged stirrups, यूज LSM। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना। आपको पहले से बता रखा है कि आपको स्टिरप्स कितनी यूज करनी है, 2 legged यूज करनी है और 8 mm डाया यूज करनी है,
ठीक है, और ये टेबल गिवन है आपको जिसमें आपको परसेंटेज गिवन है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग टाउ सी की वैल्यू गिवन है। सो दिस इज योर टेबल। ठीक है, आप इस वीडियो को रिव्यू करके इस क्वेश्चन को देखिएगा एंड देन विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन अनदर क्लास। ठीक है, मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ स्पेसिंग निकालना है। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल द फॉर्मूलाज एंड दिस विल बी डन। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये शेयर पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग फर्दर और भी प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। ठीक, सो कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको एज अ असाइनमेंट या फिर और भी दूंगा, कुछ सॉल्व क्वेश्चंस मैं आपको गूगल क्लासरूम में और शेयर करूंगा। ठीक है, मीनवाइल आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं अभी कल संडे भी है, उसके बाद में जब नेक्स्ट क्लास लूंगा आपकी, तो विल स्टार्ट विद सम अनदर टॉपिक। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इसको रिव्यू कर लें, पूरा पूरा देख लें। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप आल्सो। ये तो नेक्स्ट क्लास जो डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग रखते हैं उसमें भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ डाउट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, और पर्सनली मुझे व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू क्लास, योर अटेंडेंस हैज बीन मार्क्ड, ओके। या